Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Um, Last time we talked about the strings and we have to talk about the string methods. But before that, we would like to see what's the difference between the string and an array. Okay, um, we saw the string like for example, a is equal, then we start writing something in double quotes. Only difference between this and the array is that you write the same thing, but you have a bracket. Okay, so you write stuff inside the bracket and the bracket tells you that this is an array. For the C program, for example, we have to say firstly the int a, then we're gonna have the box here with the variable telling the size and all. Then on this side, we can initialize also in the C, for example, but you have to give the box on this side. But for the arrays in the JavaScript, we don't write boxes and all. We simply write a normal variable a or ar or whatever the array name is. Then after is equal to, we can write a box. Okay, but we have different ways to define the arrays. One is called as a literal notation, like we have in a strings. We have also in a literal notation in my JavaScript, like these things, where we don't write it like a new keyword or any constructor. We simply write it what we say let array equals to, then we give a box, and inside the box we write any many elements you like with the separated with the comma, right? And it could be also we can do it using the array constructor, because in C the array was not an object, but in Java, in your JavaScript, in Pythons and in PHPs and other guys, the higher languages, we arrays are objects. So we can have say array method where we say let, say for example, ar equals to, then I will say new and I will say array. Okay, and then I put up stuff inside the constructor. Remember, this is a constructor, so you don't have to write the box here, you have to write the parentheses. And this is a constructor, right? And the new is optional, you can also write it like using only the constructor. Let us see them in the code and try to see what I'm talking about. So inspect, let's go to the console. Okay, I'm saying if I say if I say a equals to, then I say like this, Junaid. Okay, now what is the type of a? If you say type of a, it's gonna be string. So because you didn't use the brackets here, yeah, I mean the long brackets. Okay, so if I use the same thing like say ar equals to, then I say here the bracket, and then I say same thing, Junaid, but I'm using the bracket. Okay, now I give it enter, this simultaneously it created me the ar, and the ar is gonna be, if I say type of ar, it has to be object all the time, so it is an object. Okay, so but to understand this is an array or not, but if you see this ar here, for example, you open up this ar here or here anywhere, you see it is having at the 0, it is having the Junaid, right? We yesterday we also created, the string using the constructor type. How we do that, did that, can anyone tell me? If I create the string using the constructor, how I did that, anyone tell me? Yes. uh, New string. yeah, maybe I say ia equals to new Oh, string. Okay, then I'm saying, say for example, Junaid, same thing. Okay, now if I say what is the type of aa, it's gonna be the object, both are object. Now how can I say this is an array or not? And because if you see the type of ar, that's also object, type of aa, it's also object. But there is a difference to see
one is if you open up this Junaid, which is the array which uses the brackets, and you see here it uses this brace and string, the constructor here showing up that this is not an array. But if you open up this guy here, and you see firstly the Junaid, this Junaid whole thing is a first element. Okay, number one is that difference. Number first difference is there is a bracket when you as shown, bracket is shown up, that means it is an array, and the whole string is a first element, so it takes up this as a first element only. And number next is the length is only one because you have only one element here. And in a prototype there is also a difference. You see prototype where we have the methods which work on the array. Okay, but there is again a prototype downside. There is another prototype which is itself an object, and this prototype is telling about like toString, like has own property, constructors, value of, okay, and many more, which we will see later on, these things. So this is also a difference. But if you open up this string object here, there is firstly this Junaid is whole string, and it will be indexed from 0 1 2 3. This whole Junaid is indexed. J is indexed as 0, U as indexed as 1. In case of an array, this whole Junaid was a one element. Here each character is an element, okay, and length is 6. And if you open up the prototype, okay, there are these methods, okay, all the methods which will be applied on the on that I mean, say this is a string, yeah, there on this, and there is also this prototype object where we have the toStrings and all, okay. And but the difference you can see is that the string is having each character as an indexed, but in case of array, and we have the whole thing as a one element. And but if we अगर हम देखेंगे इसको कि we have one property called array, what's it called, array dot is array, to check out is this array or not, okay. And I am saying AR, okay, and it's telling me it's true. But same thing if I say for the AA, okay, now it's telling me it's false, it's not an array. So because both of them, if I say type of what I was talking about, type of AR, it is an object, and if I say type of AA, it's also an object. Both are objects. So which one is array, which one not, we can test it using the array dot is array, right? Command K. So I told you that we can declare array using what? Using the literal notation. And there is one important thing in the array, that it is heterogeneous. Array is heterogeneous. What does it mean? It's heterogeneous is, we say for example, let ARRAY, simply I call it array, equals to, then I am putting up here, say for example, Junaid, okay, this is a string, then I'm putting up some numbers, okay, then I am putting up some boolean, and I am putting up null, I am putting up undefined, okay, and I am putting up some other values, maybe, okay, maybe 12.34, whatever. I mean, I'm trying to put up all the data types in an array, and if you say enter, it will have no issues whatsoever. If you see now the array, it will be having the length 6. There are some languages which do the optimization, and they remove these null and undefined from the length. They don't consider it as a the array path. But here the array, it can take anything, it's heterogeneous, it can take any data type, it can take many things, whatever, each and every element can be different. There's no issue. Even you can have an object, you can have the object itself in an array. Array can have the data types, array can have itself the objects inside, right? You can have here inside some objects. For example, if I want to add, say this is 0, index is 0 1 2 3 4 and 5. If I put up AR of 6, something on a AR of 6, say for example, I say what is this array, ARRAY. Firstly I can change
I can change the values also, which was not possible in the string. If I say error of 0, which is Junaid, which is showing me it is Junaid, I can change it to, for example, Muttaki, and it will not complain. Now, if you print the ARRAY, you will see it has indeed changed, which was not possible with the strings, right? Because strings were immutable, you cannot change them individually. यहाँ पे आप individually इसको change कर सकते हो elements को. Okay, you can do any many things, whatever you like. Say for example, you have ARRAY of 6 is equal to date dot now, for example. I'm putting up the current date in, this is an object, date is an object itself, so I'm putting up the object in the last here. So if I use now ARRAY and check it out, and indeed there is a date object at the end. Now you can have this is a very versatile kind of thing in an array, array taking all the data types, it's which was not possible in the C++ and all. Okay, but in PHPs we have the jagged arrays, we have the ragged arrays. That's also possible in the JavaScript. Okay, we talk about later what is the jagged array, which is a ragged array, and say multiple dimension arrays and all. Okay, and so we understood that array and a string are different. Okay, in string we have each character is taken as an index. If I have a Junaid here, each character will have a separate index, and in an array, this if this is a first, this will be taken as a first element, and then the second element, so it will be all Junaid will be all 0, so it won't be j separate and all. Secondly, you can change it, you can change a single character of this, you can change the whole thing, because this is a single box, so you can change this box to the different thing, but here it is immutable, you cannot change it. But you should remember that the characters here, okay, all the characters here, they are Unicode. They are what? Unicode. You should remember that before we had an ASCII, and which was actually 7-bit code, and later on we use basically the 8 bits in computers maximum time. We don't use 7-bit formats in the so therefore we have the 8 bits reserved for the ASCII, but truly ASCII, which is 7-bit only. So, and Unicode is different, so that means I can do, what I can do is I can do totally I will show you what we can do with the Unicode is I can say command K firstly to remove this, and as I say here can I put up in a whole thing, okay, like this. Okay, I can say here let, okay, and I'm creating an array. Okay, let j equals to, array name is jj, then I need to put a what, the bracket. Okay, and then I write here in a double quotes a string. Okay, and I'm changing my language. Let me change my language, if I can do it, to Arabic, and I say here Junaid. Okay, it is not correct spelling. Now Junaid, and put up a double quote there. Now change the language back to English, maybe English. Okay, then I say comma. Oh, it's coming up that side, huh? Wait a second, I have done something, not Arabic, go to, not Hindi, English. One second, I am saying is equal to, यहाँ पे क्यों लिख रहा है? Okay, now I say is equal, then I use the parentheses, I use here the double quotes, comma, double quotes, comma, double quotes, comma, say 23, whatever. You can have other values also here. Terminator on the back, not necessary. But here I can use, say for example, the Arabic, I say, I change my language to, say for example, I am changing it to what? Urdu, for example. Get it here and start writing inside this.
Now it is Arabic. Urdu it was, now it is Arabic. This is Arabic, Junaid. And then here I may use the Hindi Devangari font. Okay, now I'll give it a go. Now if I say what is my JJ, oh it's Hindi, I have to change back to the English. Not for this one, this is Arabic, Devangari, Urdu, English. Okay, now here if I say what is my JJ, it is giving exactly what I need to. This was Urdu, this is Arabic, this is Hindi, and it's taking up anything. You don't need to write in English. In fact, you can write everything in some different language if you like to, because we are working with the Unicode. And if you are interested in seeing the Unicode here, we can see here the Unicode chart. So this is our Unicode chart. Okay, and it is from 0 to 127 is basic Latin, 128 to 255 is these guys. Then we have all the Gujaratis, Gurmukhi, you can see Bengali, Devangari is here, which is in this format. And then if you go down, it will tell you exactly which character has say 19 is for this thing, 21 is for this thing. For plus we have 43, for 0 we have 48, and so on and so forth. All the characters, it's so long, it's a big document. As you could see here, it's too big document. Means all the character sets in the world are having some number. Okay, so your keyboard, if you press for example from the keyboard ampersand, internally it is taken as 38. Ampersand is shown up on there, or there is a dollar sign shown up on the keyboard. You press the dollar sign, but internally it is stored as 36, because this is what Unicode means, that every character has some coding. Okay, has a number to it. Say for example you press up A, internally it's not stored as A, it's stored as 65. So this is not this is your what is called as an Unicode. If you say the ASCII chart, now this is your ASCII chart coming up. Here you are. So here we have got 127, 0 to 127 we have these characters here. So for each and every character we have some ASCII code. Okay, you press up for example 0, it's actually 30 in hexadecimal or 48 in decimal. You press up say for example A, capital A, it is 65 decimal. Inside it will be stored as 65 or 41. It won't be stored as A or something. Everything is stored as a number, right? Every character is shown as a number. Then the keyboard and the monitors, they are given that logic. Say for example I send to the monitor 41, the monitor converts this 41 into A, which you can read then A. Internally it is not stored as A or B or C or anything like dollar or whatever, because internally we store it as zeros and ones, right? Because why we need this is internally you store everything. You press up for example you say A, but internally you're not going to store it as A. There's no A stuff inside. Inside we all store 0 and 1. So therefore we convert this into the number. So we have a number for A, that is 65 in ASCII, and 65 can easily convert into binary, and then we can store that easily, but not as a character A. But then the keyboard and the mouse and this what is this called, monitor, they have a logic. You press something on a keyboard key, internally in a buffer the ASCII of that is converted into its ASCII or Unicode as per the language. And similarly with this monitor, you send the Unicode or ASCII to the monitor, and monitor has a logic which converts that into the character, and then that character is shown up here. For example RS232 is here, which is shown up here. Okay, which is actually internally stored as what, the numbers. Then in the form of ASCII, even this 232, it also, every character has an ASCII or Unicode number. See, you are saying 2 basically. If you see here, character 2, that is 2 here, it is actually 50 in your decimal. So you write 2, but internally it is stored as 50. Okay, you write 3, it is stored as 51.
You write 0, internally stored as 48. So internally is stored as 48. So every character you see here, all the characters you see here are stored in the Unicode or in the ASCII. Now in the ASCII it was only 7 bits, so 2 to the power 7. So 2 to the power 7, if you say 2 to the power 7, what is 2 to the power 7? That is 128. So you start from 0 to, so you say 2 power 7, that's 128. So that means total you can have 128 characters, that means 0 to 127. But for ASCII you have, for the Unicode you have 16 bits, 2 bytes. You have what? You have 2 bytes, you know, your Unicode is 2 bytes. Your ASCII was just 1 byte, single byte. In fact, not even a single byte, it is using the 7 bits. But it also has the, but we use 8 bytes, so 2 to power 8. So modern ASCII is 2 to power 8, that's 256. If you say here 2 to power 8, 2 to the power, if you say here 2 to the power 8, it is 256. So you have 256 numbers which you can assign to some characters. So लेकिन इसमें आपके चाइनीज कैरेक्टर सेट, अरबिक कैरेक्टर सेट में हिंदी, तमिल, बंगाली, कश्मीरी वो तो नहीं आएगा ना इसमें, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं पहुंच सकती 256 में, इसलिए हमने 16 बिट दे दिया. सो 2 टाइम्स 16 दैट इज 65536. तो आपके पास 65536 नंबर्स हैं जो कि आप असाइन कर सकते हो, जो कि हमने यहाँ पे देखें कि आपका जो है, यानी कि यहाँ से तो आपने डिफरेंट, जैसे अरबिक आपका ये है कैरेक्टर सेट, वो इसमें आ रहा है 15362191. सो 0 to 127 आपका लैटिन कैरेक्टर्स आएंगे. और इसी तरीके से आपको एंड कहाँ पे हो जाएगा 65533 पर, ठीक है ना. और कुछ आपके ये 0 से शुरू है, तो जब 0 से शुरू है, हमने यहाँ पे किया, कहाँ पे किया हमने ASCII इंस्पेक्ट, हम कह रहे हैं 2 to the power 16, 2 to power 16, that is 65536. और यहाँ पे 65533 तक आया, एक 0 में चला गया तो हो गया 34, दो अनयूज्ड है, तो कुल मिला के 65536 मेरे पास का ASCII कैरेक्टर्स हैं जो मैं रख सकता हूँ. ठीक हो गया, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? एनी कन्फ्यूजन इन दिस? हाँ जी, No, sir. getting clearly what I'm saying? So you can use any character set, no problem, but each character जो आप चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे आप एरे में कोई कैरेक्टर लिखते हो, जैसे आपने J लिखा, this J will occupy 16 bits और 2 bytes. लेकिन जो आपका C वगैरह था, उसमें ये कैरेक्टर जो था वो 80 बिट का था, 8 बिट का कैरेक्टर होता था. दैट इज़ वाई यूर कैर वॉज टेकिंग 1 बाइट. okay, it was taking 1 byte in your C character. okay, here every character in Java हो, आपका JavaScript हो, उसमें each character takes 16 bits because we are not using ASCII here, we are using what, Unicode. क्योंकि ASCII एब्सोल्यूट हो गया, ऑब्सलीट हो गया. क्यों हो गया ऑब्सलीट? क्योंकि उसमें 128 ही आपके पास ऑप्शंस थी, फिर 256 ऑप्शंस आए क्योंकि हमने 8 बिट लिया, तो उसमें सारे कैरेक्टर्स नहीं पहुंचेंगे. तो हमने हर दुनिया के ये हमने स्टैंडर्ड बनाया कि जो भी कैरेक्टर है, जो भी जैसे फॉर एग्जांपल हम उर्दू का लिखेंगे बे लिखेंगे, या अरबिक का बा लिखेंगे, तो इसके पीछे कोई कैरेक्टर होना चाहिए ताकि मैं जो मॉनिटर्स हैं, मेरे कीबोर्ड्स जो है, वो स्टैंडर्ड बना सकूं उनका, कि वो कन्वर्ट कर सके. जब मैं इसका जैसे बा का फॉर एग्जांपल 223 होगा फॉर एग्जांपल इसका ASCII, सो जब मैं 23 पिलाऊंगा अपने मॉनिटर को, वो कन्वर्ट करना चाहिए उसको बा, तो यहाँ पे दिखना चाहिए मुझे बा. सो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है किसका, ASCII यूनिकोड का. वो हमने 16 बिट्स का लिया. 16 बिट्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 65536 है, इतनी सारी ऑप्शंस मेरे पास हैं ताकि दुनिया के सारे जितने भी कैरेक्टर सेट्स हैं उनका मैं कोड बना सकूं. और कोड हमको समझ आ गया क्योंकि आपका J इंटरनली स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए हम इनको हर एक, जैसे डॉलर है हमारे पास, @ है, या जितने भी सिंबल्स मेरे पास हैं, जो भी कैरेक्टर्स आपको दिखते हैं दुनिया के अंदर, उनका एक नंबर होना चाहिए. वो नंबर मैं फिर स्टोर कर सकता हूँ इन माई
मेमोरी, एंड उसी के हिसाब से मैं अपने कीबोर्ड, माउसेस वगैरह, डिस्प्ले डिवाइसेस एंड ऑल बनाऊंगा, ताकि वो फिर उन नंबर्स को उन कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर सके। तो एक ही फॉर्मेट रहेगा। तो आजकल एक ही फॉर्मेट हमारे पास है, वो है यूनिकोड। ठीक हो गया। तो यानी कि आप अगर चाहें यहाँ पे अरबिक में प्रोग्राम लिख सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट, नो इश्यूज़, और आपको आराम से इसको समझ आ जाएगा, बिकॉज यूनिकोड चल रहा है पीछे से। तो कुल मिला के अभी अभी तक मैंने ये कहा कि आपको जो एरे है, ठीक है ना, वो या तो आप लिटरल नोटेशन से करो। लिटरल नोटेशन मैंने क्या कहा जनाब, इसको मैं थोड़ा सा, yes, I think the literal notation I can say let AR equals to simply bracket, then I can put up anything in it, right? And I can have separating commas, I can have anything there, 3 comma 4 comma, say for example Junaid, and I can have any data types. I told you we can have null, we can have undefined, we can have anything. And what is the length? If I say what is the AR dot length, क्योंकि मेरे पास लेंथ, प्रोटोटाइप, कंस्ट्रक्टर तीन चीज़ें देंगे ही देंगे, है ना इसमें। क्योंकि जब जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसमें मैंने आपसे कहा कि उसमें आपको तो कंस्ट्रक्टर ये है ही है, और उसका लेंथ एज एन एट्रीब्यूट है, और प्रोटोटाइप हमारे पास है, वो तो है ही है। तो लेंथ इसने कहा 6। अब अगर मैं कहूँगा इसमें फॉर एग्जाम्पल, एक मज़े की बात है कि मैं कहूँगा AR ऑफ 10, मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 6, है ना। मैं कह रहा हूँ AR ऑफ 10 पे आप मुत्तकी डाल दो, ये डालेगा क्या? व्हाट विल बी द कैन इट डू इट? यस इट कैन। लेकिन अब ये तो 6 ही थे, तो 7 8 9 10 क्या हो जाएगा, कि मतलब हमारे पास तो 6 ही एलिमेंट्स थे ना। मेरे पास तो 6 ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, देखो ये मेरे एलिमेंट्स हैं, मेरे पास 6 ही है। ये हो गया एक एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा नल है। तो 7वां बॉक्स ये हो गया, 8वां बॉक्स ये हो गया, 9th बॉक्स ये हो गया, और 10th बॉक्स में ये डालेगा मुत्तकी। और ये जो वाले बॉक्सेस हैं ये एम्प्टी रखेगा, लेकिन इनकी जगह मिलेगी। इट क्रिएट्स द स्पेस, बट इट क्रिएट्स it will keep them empty. As you could see, if I print up the AR here, if I print up the AR here, now it is telling me कि आपके पास ये चीज़ें हैं, उसके बाद empty into 4 है, तो 4 आपके पास स्पेस एम्प्टी है, और फिर 10th लोकेशन पे आपको मुत्तकी आ गया। वी कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है, इतना फ्लेक्सिबल है ये, एज यू कुड सी इट इज सो मच ऑफ फ्लेक्सिबल। यानी कि यू कैन थिंक अबाउट एनी थिंग विद द एरे, यू कैन डू इट। इस ज़बरदस्त वर्सटाइल चीज़ आख कमा, समझ आ रहा है। अब आप एरे को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो यूजिंग द एरे कंस्ट्रक्टर, यूजिंग द न्यू कीवर्ड। सो आई कैन से लेट say my array, मैंने एक वेरिएबल बनाया my array equals to, I can say new, I am saying array, then I can put up here say for example 4. What will happen in this? Can tell me? Will this be I will be given one box with the 4 in it, or I will be given 4 boxes, empty 4 boxes, 1 2 3 4 boxes, 1 2 3 4 boxes. Will it be like this, that I got a single box with an element 4 in it, or will it be 4 empty boxes, or will it be an error? 4 empty boxes. It should be 4 empty boxes, but right now it is an error, and spot the error. अब ब्रेसेस नहीं किए, वो स्क्वायर वाले यूज, जी स्क्वायर ब्रेसेस नहीं आपने यूज किया है। नहीं, बेसिकली जो आपका ये जो आपका एरे है यहाँ पे, ये जो आपका एरे है ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर इज लाइक ए मेथड which is having these parentheses, not the square brackets. It's right, parentheses are right. Why? Because it's a constructor. Constructor is nothing, जब भी आपका एक क्लास होता है, आपके पास एक क्लास है, उसका एक स्पेशल मेथड होता है जो इस क्लास को क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। अगर इसका नाम है फॉर एग्जाम्पल एरेज क्लास है, उससे मैं बना रहा हूँ, बिकॉज वी हैव एक्चुअली द एरेज क्लास, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द एरेज क्लास, जो एरे क्लास है, तो इसलिए मैं इसको एरे का कंस्ट्रक्टर एक है जो इसको क्रिएट करके देगा, दैट इज ट्रू, राइट। लेकिन मैं एक गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे,
A capital. A capital. Very good. A has to be capital. Why? Because class name is always capital and the constructor name and the class name are same. है ना? So it cannot have the small a. So that means right now if I give it a go, it will tell me कि see array क्या चुकना है ना? If I give it a go here, it will show me reference array is not defined. So I should do what? I should go here and write what? A capital. But it will not create me a single element, right? It will create me 4. If I say my array, it is 4 empty into 4. So it's giving me 4 blocks of empty space. Now if I would have done it like this, I would have done it let arr is equal to, and the bracket, and I say 4 and I say okay. Now if I say arr, it was having element 4, a single element 4. It was single element 4 here, right? But in this case, if you say 4, it gives you the 4 empty boxes. Okay, it gives you 4 empty boxes. This one was giving, if I use like this, it is giving me what? It is giving me 4 as an element. But अगर मैं 4 के बगैर कुछ और दूंगा यहाँ पे, if I say here let new array is equal to, I will call it array 2 equals to new array. I say for example here true. Now if I say here what is my array, 2, so it's having single value, length will be 1 and the value is 2. So if you put anything other than the numbers, then it will take as an element, the first element. It will take as the first element. But if you take it as a number, then it will not be taken as a first element. It will give this, it will be taken as a size of the array. समझ में आ रही बात? हाँ जी. और एक important पॉइंट है जो कि बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है, जैसे जावा हो गया या PHP आपका हो गया या बाकी लैंग्वेजेस हैं, वहाँ आपको जो एरेज होती हैं वो 2 किस्म की होती हैं. क्या होती हैं? एरेज आपकी 2 किस्म होती हैं. एक होती है एसोसिएटिव एरे, एक होती है इंडेक्स्ड एरे. इंडेक्स्ड एरे यही हो गया जो हमारे पास है. दूसरा हो गया एसोसिएटिव एरे. एसोसिएटिव एरे में क्या होता है कि जो नॉर्मल एरे आपके पास है उसमें आपके पास, जैसे आपके पास इसमें एलिमेंट्स हैं और उनके पास इंडेक्सेस होते हैं, नंबर इंडेक्सेस 0 1 2 3 4. लेकिन एसोसिएटिव एरे के पास नेम और वैल्यू पेयर्स होते हैं. यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट है, मैं इस पहले एलिमेंट का नाम रखूँगा जुनैद फॉर एग्जांपल, इसका नाम रखूँगा इफ़ला, अपनी मर्ज़ी है. इसका नाम रखूँगा बॉय, इसका नाम रखूँगा कैट. यानी कि मैं कुछ भी रख सकता हूँ एज एन इंडेक्स. देन टुमारो आई कैन से हियर AR ऑफ जुनैद मुझे करके दो. ठीक है, AR ऑफ जुनैद मुझे करके दो, तो वो आपको ये एलिमेंट दे देगा, जिस तरह हम AR ऑफ 0 कहते हैं यहाँ पे. सो एसोसिएटिव एरे इज़ ए की वैल्यू पेयर. ओके, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. इसमें हम जैसे अगर आप PHP के अंदर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ईमेल फॉर्म बना रहे हो और ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम होगा, से फॉर एग्जांपल दिस इज़ नेम, दिस इज़ फर्स्ट नेम, दिस इज़ लास्ट नेम. और जब हम फिर पोस्ट करके फिर हम जब सबमिट करेंगे फॉर्म को, वो आपका एक एसोसिएटिव एरे $_पोस्ट में रहेगा और उसमें नेम और वैल्यू पेयर रहेगा. सो $एसोसिएटिव पोस्ट जो होगी वो एसोसिएटिव एरे है, जिसमें जो नेम आपने भरा यहाँ पे जुनैद भरा फॉर एग्जांपल, और इसका इंडेक्स रहेगा f नेम, यही फर्स्ट नेम रहेगा. और फिर आपने लास्ट नेम में कुछ भरा फॉर एग्जांपल व्हाटएवर लास्ट नेम क्या है, और इसका इंडेक्स रहेगा लास्ट नेम. एंड जो आप ये इंडेक्स जो आपकी है, आप 0 1 2 नहीं कर रहे हो, बल्कि आपने नेम्ड कोई स्ट्रिंग्स आप बता रहे हो कि इसका, जिसके हम बोलते हैं कीज़, तो इन्हें हम बोलते हैं की वैल्यू पेयर. ये हो गया की और ये हो गया वैल्यू. ये ऊपर वैल्यू है, ये वैल्यू है और कीज़ नीचे हैं. इन्हें हम बोलते थे एसोसिएटिव एरे. क्या बोलते हैं? हाँ जी, एसोसिएटिव एरे. ये याद रखना है आपको कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एसोसिएटिव एरेज नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि वो तकरीबन सब लैंग्वेजेस में है. और यहाँ पे सिंपली इंडेक्स्ड एरेज होता है, जिसमें सीधे इंडेक्स लगता है. और एक चीज़ भी याद रखना चाहिए कि यहाँ पे आप इंडेक्स जो है, अब आप उतना डीप भी नहीं पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब इंडेक्सिंग होता है तो क्या हो जाता है, फिर 2 स्ट्रिंग कॉल होती हैं, कोर्स हो जाता है. लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट दिखाऊंगा यहाँ पे, उतना डीप हम
नहीं जा सकते, वो फिर ज़्यादा डीप हो जाएगा। अगर उस लेवल पे पढ़ेंगे तो फिर तो हम एरेज पे ही अटक जाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वी विल टेक लॉट ऑफ टाइम देन, कि अगर अब उस लेवल पे आपको पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा यहाँ पे आपको ये ताजुब होगा कि हो क्या रहा है, कि मैं कहूँगा एयर ऑफ ज़ीरो, ठीक है ना। तो एयर ऑफ ज़ीरो में आपके पास ये है ना, ए जे वट एवर क्या था इसमें ना, ए आर में, अगर हम ए आर पहले देखेंगे ए आर में है क्या, उसमें ये है, फिर 1 2 3 फिर वगैरह वगैरह है। अगर मैं कहूँगा इसको ए आर ऑफ डबल कोट्स में ज़ीरो, ठीक है ना, तो ये तब भी काम करेगा, ये तब भी, क्योंकि इसमें कोएर्शन होती हैं, टू स्ट्रिंग कॉल होती हैं। अब मैं वो नहीं, अब उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। फिलहाल मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट ही हो रहा है, फिर इसमें कोएर्शन हो रही है, उसके बाद आपका वो निकल आता है। यानी कि आप इसमें डबल कोट सिंगल कोट करके भी ज़ीरो लिखोगे या 1 लिखोगे या 2 लिखोगे, तो ये आराम से आपको चीज़ें देगा, ठीक है, बात समझ आए। और एक और बात यहाँ पे है कि जो आपने अब ये जो आपने इस तरीके से, जो आपने इस तरीके से एरे को डिक्लेयर किया, या आपने कहा कि लेट ए आर इक्वल्स टू, फिर ऐसे किया, यानी किया आपने एज ए लिटरल किया, लिटरल नोटेशन से किया, या आपने एरे कंस्ट्रक्टर से किया, जो कंस्ट्रक्टर मेथड है, एरे कंस्ट्रक्टर का, एरे का जो कंस्ट्रक्टर मेथड है उससे किया, दोनों सूरतों में आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन जो आपका स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग आपको लिटरल नोटेशन से स्ट्रिंग बनती थी, और न्यू करके जब आप करते थे उसमें आपको ऑब्जेक्ट बनता था, लेकिन वो एरे नहीं होती थी, वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता था। दे आर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। और एक और चीज़ आप याद रखें, जो नॉर्मल जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एरे और ऑब्जेक्ट्स में, ये फ़र्क है कि ऑब्जेक्ट्स में की वैल्यू पेयर चलता है एक्सेस के लिए, इसमें की वैल्यू पेयर नहीं, 0 1 2 इंडेक्सिंग होगी, इंडेक्सड एरेज हमारे पास है। लेकिन ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास है तो उसमें की वैल्यू पेयर होगी। तो यानी कि अगर हमारे पास फिर अगर हमारे पास ये ऑप्शन है फिर कि अगर हमें की वैल्यू पेयर चाहिए, तो हम एरे एज एन सिंपल ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं, हम टाइप्ड एरेज इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमें एक ही वैल्यू चाहिए, यानी कि एक ही डेटा टाइप्स चाहिए, तो वो उसका भी इंतज़ाम हमारे पास है। यानी कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लिमिटेशन किसी चीज़ की है नहीं, ठीक है ना। तो आपको फ्रीनेस भी है, और अगर आप स्ट्रिक्टनेस करना चाहते हो कि भाई एक ही डेटा टाइप रहे, और आपको की वैल्यू पेयर है, फिर ऑब्जेक्ट्स आप जो जो भी इस्तेमाल करोगे, तो ये जो आपकी स्ट्रिंग है, जो आपकी ये स्ट्रिंग है यहाँ पे, जो कि एज एन ऑब्जेक्ट आपने बनाया, वो कैसे बनाया एज एन ऑब्जेक्ट आपने, आपने कहा था कि लेट New, ए इक्वल्स टू, हाँ, यूजिंग new, द न्यू new, न्यू स्ट्रिंग, और उसके बाद आपने स्ट्रिंग दे दी यहाँ पे, और ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन ये आपकी एरे ऑब्जेक्ट नहीं है, वो डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट ये एज एन ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये एज एन एरे ऑब्जेक्ट है। एरे ऑब्जेक्ट इज टोटली डिफरेंट, which firstly doesn't have an the associated key value pairs and all that। और इसमें अपनी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि स्ट्रिंग्स के अंदर नहीं है, जो हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं, जो एरे मेथड्स हमारे पास हैं, और हमारे पास स्ट्रिंग मेथड्स हैं, जिसमें थोड़ा सा हमने कल पढ़ा था। तो स्ट्रिंग मेथड्स और एरे मेथड्स कुछ कुछ सेम है, लेकिन बहुत डिफरेंट है एरे मेथड्स, जिसके ऊपर हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ओके, ये बात समझ आ गई? हाँ जी, yes, sir. क्लियर अप टू दिस थिंग? ओके। Yes. और मेरा ख्याल है कि एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट एरे का मैं बता दूं, फिर इसके और भी तरीके हैं करने के, यू नो, वी कैन क्रिएट इट एरे फ्रॉम द अदर एरेज एंड ऑल दैट, मे बी वी डिस्कस देम लेटर ऑन। यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये न्यू आप इग्नोर कर सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू राइट द न्यू, वी कैन, इट विल बी सेम थिंग। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहूँगा AR2 equals to, I use only array constructor, and it is a constructor, therefore it don't have the the long brackets, it has to have the Yes, sir. parentheses, right? So remember, Yes. always it's a constructor. Constructor is like a method, special method. constructor वगैरह वो बाद में हम बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई साहब मेरे पास जुनैद है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट 1 है, तीसरा 2 है, फिर 3 है, एंड सो ऑन। सो इट डजंट हैव एनी इश्यूज, इट विल क्रिएट मी द सेम object, okay, with the length of 4 and all. So you write new or you don't write new, it will be automatically written. If you don't write, it is there. You don't write it, but it's not like it's not there, it is there. But the JavaScript will do it for you. It will create this, because this will be created in a heap.
सो आपका जो भी आपका होगा यानी कि आपने AR3 बनाई, अगर वो भी आप मैं पहले इसको कॉपी करूँगा ये, और मैं कहूँगा यहाँ पे AR3, इसमें सेम ही एलिमेंट्स है ना, तो सेम एलिमेंट्स है बट इट विल बी टोटली डिफरेंट. सो इफ आई से AR2 इक्वल्स टू AR3, इट इज़ फॉल्स. वाई? बिकॉज दे आर टोटली डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आपको ऑप्टिमाइजेशन नहीं करके देंगे, क्योंकि जो न्यू कीवर्ड से होता है, यानी कि जो डायनेमिकली आप क्रिएट कर रहे हो, इट वोंट बी क्रिएटेड इन अ स्ट्रिंग पूल और अ फ्री पूल मेमोरी, इट विल बी क्रिएटेड इन अ हीप. और हीप में हर एक ऑब्जेक्ट अलग होता है. सो ये अलग है, इसकी मेमोरी अलग है, इसकी मेमोरी अलग है. सो दे विल नेवर कम टू इक्वल. कंपैरिजन में ऐसे नहीं लगेगा जैसे ऐसे कर रहे हैं हम. ठीक है, बिकॉज it will see the reference, it will see the addresses. Okay, but if you want to check the contents, we can do that. We will see that. बात समझ में आ गई? हाँ जी. Yes, sir. Now Yes, we sir. can go for the string methods. We have a lot of methods for the strings and we have a lot of methods for the arrays. Now first of all we see the string methods. For example, आपने यहाँ पे prompt किया, ये लिख ही नहीं रहा, आपने यहाँ पे क्या किया? prompt, PROMPT. आपने prompt किया कि भाई साहब पासवर्ड दीजिए. तो आपने एक prompt दिया कि भाई साहब पासवर्ड दे दीजिए, और वो आपने डाला, जो वहाँ से आएगा वो आपने फॉर एग्जांपल एक पास किए, आपका पास वेरिएबल है, उसमें आप डालोगे. जब मैं एंटर करूँगा, ठीक है, तो प्रॉम्प्ट तो कहीं आया ही नहीं. प्रॉम्प्ट तो आना चाहिए था, वो यहाँ से आ गया है. ठीक है, भाई साहब पासवर्ड दे दीजिए आ गया यहाँ पे. अब इसमें क्या करोगे आप काम? आप एक पासवर्ड दोगे इसमें, लेकिन आपने स्पेसिस दे दी. ओके, आपने स्पेसिस दे के ये कर दिया. नाउ इफ आई गो हियर एंड आई चेक द पास, नहीं PAS है, PAS, इट इज़ हैविंग स्पेसिस. कमांड के करेंगे पहले, कमांड के ऊपर जाएगा. सो इफ आई से पास, इट इज़ हैविंग स्पेसिस एंड आफ्टर दैट जुनैद. ठीक है ना? या आपने एक काम किया, इसको हम नीचे ही रखेंगे फ़िलहाल. हमने एक काम किया यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ पास इज प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया, उसके बाद मैंने स्पेसिस दे के जुनैद लिखा, उसके बाद और स्पेसिस दिए मैंने वगैरह वगैरह, पता नहीं और स्पेस लेगा या कि नहीं. अब अगर मैं पास कह रहा हूँ PAS, तो इसमें फ़िलहाल स्पेसिस है. देखो यहाँ कोट है और यहाँ कोट है, इसमें आगे भी स्पेस है, पीछे भी स्पेस है ना. और मैं चाहता हूँ कि ये तो गलती से हो गया होगा स्पेसिस, एंड आई डोंट वांट, क्योंकि आपने 2 स्पेसेस डाले, 3 स्पेसेस डाले, फिर कल जाके आपको जो है पता नहीं था आपने स्पेसेस डाले कि नहीं डाले. मतलब दबियोमुत स्पेस क्लिक कोरमुत क्या था गोमुत, यह पोकमुत हर योर स्पेसिस चे मगर सह रोज याद कि मे कर स्पेस त्राय वगैरह. बहुत बह निम स्पेसिस पासवर्डस मज कहें. ठीक है, देन व्हाट आई विल डू इज I can trim this spaces. If I say P equals to, जो मेरा पास है, dot trim. ठीक है, dot trim. It's a method, so you need to have this thing. PAS. डबल S आ गया, इसलिए इसने नहीं दिखाया था. You're right. Pass dot trim. Now अगर आप P करोगे, अब आप देखोगे P के अंदर ना आगे स्पेसिस ना पीछे स्पेसिस. अगर मैं कहूँगा P इक्वल्स टू, और एक बात याद रखना चाहिए, जब मैं कह रहा हूँ पास डॉट ट्रिम, इट वोंट affect the pass will still be same, it will create a new string with whatever operation you have done, and that thing I put up into the P. If I say P is equal to pass dot एक ट्रिम का आता था ना ये, अगर ना हम आगे वाला ट्रिम करेंगे, पीछे वाला ट्रिम करेंगे, ट्रिम एंड आता था शायद, ट्रिम एंड, यस, ट्रिम एंड. अगर मैं ट्रिम एंड करूँगा विद पेरेंथेसिस, नाउ यू सी इसने एंड वाली स्पेसिस खाई, आगे वाली छोड़ दी. इस तरह से करूँगा P इज इक्वल टू पास डॉट ट्रिम स्टार्ट. तो उसके बाद मैं करूँगा तो आगे वाली स्पेसिस ख़त्म, पीछे वाली हो गई.
और आई सेड p इज इक्वल टू trim pass डॉट trim, तो ये आगे पीछे सब की सब जो स्पेसेस हैं इसमें पेरेंट्स डालना चाहिए था मुझे, तो इसने आगे पीछे सारी स्पेसेस खाई. So this is what is called as trim. Trim will remove the spaces. So this is what we are doing is we are reading string operations, string methods. ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि स्ट्रिंग को रैप करते हैं ना ऑब्जेक्ट, और सारे जो ऑब्जेक्ट के वो मेथड्स हैं वो इसमें लगेंगी. फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के मेथड्स वो नॉर्मल स्ट्रिंग में लग जाएंगी. अगर मैं अपर केस में करना चाहता हूँ इसको, सो आई कैन से पास डॉट pas डॉट एक आता था टू अपर केस, सो इट विल कन्वर्ट दिस इनटू द अपर केस. लेकिन मुझे किसी में डालना चाहिए ना p, पहले मैं कहूँगा ऐसे, मैंने गड़बड़ किया ना इसमें. फिर से p इक्वल टू, मैं पेरेंट्स नहीं दे रहा हूँ. पेरेंट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द मेथड. सो नाउ यू सी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑल अपर केस हियर. इसी तरीके से अगर आपका है कि आपने क्या किया काम, आपने टू अपर केस नहीं कहा कि टू लोअर केस कहा. तो ये इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा, अपर केस लोअर केस. ठीक है. एक और चीज़ होता है दैट्स कॉल्ड एज अ स्लाइस. हम इसको चेन भी कर सकते हैं, यानी कि मैं पहले ट्रिम करना चाहता हूँ फिर अपर केस भी करना चाहता हूँ. सो आई कैन राइट हियर p इज इक्वल टू, पहले मैं करूँगा काम इसमें, मैं इसमें ट्रिम करूँगा p डॉट ट्रिम, डोंट फॉरगेट द पेरेंथेसिस, फिर डॉट, यानी कि चेनिंग कर रहा हूँ मैं, आई एम चेनिंग द थिंग्स. से फॉर एग्जाम्पल टू अपर, अब इसके बाद मैं इसको अपर भी बना रहा हूँ. दो चीज़ें मैं कर रहा हूँ साथ साथ. ठीक हो गया, पेरेंथेसिस ना बोलें. तो अब इसने ट्रिम भी किया और इसको अपर केस भी बनाया. बोथ थिंग्स इसने दोनों किए इसमें. ठीक हो गया. अच्छा, और भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे एक स्लाइस है हमारे पास, या हमारे पास रिप्लेस है. कि मेरे पास से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट n इक्वल्स टू जुनैद इज़ टीचिंग HTML. ठीक हो गया, ए n है. नाउ आई एम सेइंग इसको रिप्लेस करो, n डॉट रिप्लेस. ठीक है, रिप्लेस आप करो बाय साहब क्या, जो HTML मैंने कहा था आपसे, HTML जहाँ पे है उसको रिप्लेस करो विद जावास्क्रिप्ट. ठीक है, एंड गिव इट अ गो. Now you will see Junaid is teaching JavaScript is coming up. Okay, but if I press up here n, the n is still HTML, because I told you whatever the operations you will do, it will not affect the original string. Original string will not be affected, rather it will be created, different string will be created and you can assign that to some other. यानी कि अगर मैंने इसमें यहाँ पे ये जो मैं रिप्लेस का जो है, लेकिन मैंने डाला है किसी चीज़ में, से फर्ज मैंने p में डाला है, तो अब p के अंदर ये चीज़ें होंगी. वैसे p के अंदर वो नई चीज़ आ जाएगी. ठीक है, बात समझ आई? हाँ जी. इसी तरीके से हमारे पास रिपीट है. रिपीट सिंपल है, खुद ही करो. अगर मैं इसको करूँगा str डॉट रिपीट, ये इस चीज़ को रिपीट करेगा फॉर मेनी टाइम्स. यानी कि अगर मैंने कहा रिपीट 5, तो ये 5 बार इसको रिपीट करेगा. एक इंपॉर्टेंट हमारे पास है व्हाट इज़ कॉल्ड एज एन स्लाइस. स्लाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि अगर आप, ये दो चीज़ें, एक है स्लाइस है, एक है सब स्ट्रिंग. तकरीबन दोनों काम करते हैं सेम लेकिन डिफरेंट है कमांड. ओके, जो हमारे पास स्लाइस है और हमारे पास क्या है सब स्ट्रिंग, ये दोनों जो है ये एक ब्लॉक ऑफ आपको इसमें लेंगे. आपके पास अभी n था, उसमें ये है जुनैद इज टीचिंग HTML. अब अगर आप कहोगे n डॉट स्लाइस और आप कहोगे भाई साहब मुझे स्लाइस करके दो आप 12th from 12. So what it will does is it will start from the 12. So this is E was 12 here. It starts from 12 up to the end and start giving the substring from E. From this n, it will start from 12. Okay,
and up to the end. So this means 12 to the end. Okay, but if I do the same thing, but I use a substring, I say n dot substring. Okay, n dot substring करूँगा और मैं इसको भी 12 लिख दूंगा मैं. Now you will see there will be no difference here right now because slice और substring सेम ही काम कर रहा है कि 12 से शुरू करो और आगे चलो. ठीक है. अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूँगा n डॉट सबस्ट्रिंग ही कह रहा हूँ मैं. ओके, और मैं इसको कह रहा हूँ कि आप भाई साहब -11 से चलो. ठीक है. इन सबस्ट्रिंग the minus, if you put the minus, it will convert it into 0. If you put in substring minus negative number, it will convert it into 0. It's as good as writing 0. So that means you start from the 0. Okay, you start from 0 up to the end. But if I do same thing using the slice, and I am saying -11, what it will does is, इसने अब ये क्या किया, ये स्टार्ट करेगा फ्रॉम -11. -11 मीन्स यहाँ से पीछे से, यहाँ से ये यहाँ से आएगा, यानी कि ये आएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आगे यहाँ पे. ये यहाँ से दिखेगा -11, यानी कि पीछे से आएगा जो स्लाइस है. अगर आप सबस्ट्रिंग को माइनस करते हो तो ये बिल्कुल आपके 0 से इट कन्वर्ट्स इनटू 0. लेकिन जो आपका ये है स्लाइस है, ये इसको कहता है माइनस. अगर ये रिवर्स में आएगा, अगर यहाँ से आएगा ये इसको 0 1 2 सो एंड. अगर यहाँ से आएगा ये यहाँ इसको -1 कहता है, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया. इस तरीके से ए जो है ये -11 पे है, और इसने -11 से अब शुरू किया. स्लाइस ने -11 से शुरू किया अप टू द एंड, तो इसने यहाँ से एंड तक दे दिया. समझ में आ गई बात? अच्छा, अब अगर हम करेंगे इसी चीज़ को, हम करेंगे, हम कहेंगे कमांड के या इसको बड़ा करेंगे हम. अच्छा, अब मैं करूँगा एक और चीज़, मैं कहूँगा n डॉट स्लाइस. मुझे आप दे दो भाई साहब, से फॉर एग्जांपल 12 to 16. ये 12 से शुरू करेगा, एंड करेगा 16 पे. 12 से शुरू हो गया ई यहाँ पे, इस यहाँ से 12 से हो गया शुरू, और 16 EACH, इसने ये टीचिंग का ईच दे दिया, 12 से 16 तक दे दिया, क्योंकि मानो ई 12 पे था और H 16 पे था, इसने ऐसे दे दिया. ठीक है. अगर मैं यही चीज़ करूँगा सबस्ट्रिंग के साथ, n डॉट सबस्ट्रिंग string, मैं कहूँगा 12 से 16 तक दो. सो इट विल अगेन बी द सेम, इट वोंट हैव एनी इश्यूज. लेकिन अगर मैंने उल्टा किया, मैंने कहा स्लाइस और मैं यहाँ पे 16 रख रहा हूँ, मैं उल्टा कर रहा हूँ, मैंने 16 रखा फिर 12 रखा. ठीक है. सो 16 से 12 मैं उल्टा कर रहा हूँ. ओके, 16 से 12 कर रहा हूँ मैं, जबकि वो गलत चीज़ है, तो ये एम्प्टी देगा. लेकिन अगर आप यही चीज़ करोगे यूजिंग द सबस्ट्रिंग, तो अगर आप यही चीज़ करोगे यूजिंग द सबस्ट्रिंग, तो ये इसको सुधारेगा, ये स्वैप करेगा इसको, तो ये इसको 12-16 बनाएगा, इसको 16-12 को 12-16 बनाएगा. ये 12 से शुरू करेगा 16 से, जो इसने यहाँ पे आउटपुट दिया था, ये वही आउटपुट यहाँ भी दे रहा है. क्यों? क्योंकि ये इसको क्या करेगा, ये इसको स्वैप करेगा, ये 12 को इधर लाएगा, 16 को इधर लाएगा, तो ये नॉर्मल बनाएगा इसको एज इफ इट इज़ लाइक दिस. सो इट इज़ गिविंग द करेक्ट आउटपुट. लेकिन अगर स्लाइस को दिया आपने 16 से 12 तक जाओ, तो ये गलत चीज़ है, तो इसमें ये एम्प्टी देगा, तो ये बोलेगा भाई साहब ऐसी चीज़ है नहीं कोई. ठीक हो गया? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि अगर हम करेंगे n डॉट स्लाइस करेंगे, n डॉट स्लाइस करेंगे हम, फ़र्ज़ कीजिए हम करेंगे n डॉट स्लाइस -8 to -4. तो -8 से -4, ये पीछे से आ जाएगा. -8 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया यहाँ पे -8, और फिर वापस चला जाएगा 4 पे. तो ये यहाँ से -8 -4 इसके लिए ठीक है, क्योंकि -8 स्टार्ट है तो वो ठीक है. जो इससे पहले जो हमने किया था, हमने 16 से शुरू करना था,
तो 16 से जब हमने शुरू किया, मानो 16 यहाँ पे आ गया तो ये इस डायरेक्शन में जाता है। तो हम कह रहे हैं 16 से 12, तो यहाँ वापस जाओ, तो ये इसने वहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दिखा दिया यहाँ पे, है ना, क्योंकि 16 से हमें इस डायरेक्शन में जाना है। अब -8, -1, -2, -3 और ये आ गया -8। अब इस डायरेक्शन में चलेगा -4, क्योंकि -4 आपका यहाँ पे है, -2, -3, -4 वो यहाँ पर है। तो ये डायरेक्शन इसको ठीक मिल रही है, -8 to -4 इसकी डायरेक्शन ठीक मिल रही है, तो ये काम कर रहा है। क्योंकि इसको लेफ्ट टू राइट ही जाता है स्लाइस। इस सूरत में इसने -8 से शुरू किया और -4 पे रुक गया, तो ये इतनी सारी स्ट्रिंग देगा, जो कि आपका यहाँ पे आ गया इंग, ये वाला आ गया, ये आ गया, ये -8 पे था और ये -4 पे है, एंड सो ऑन, -4 एक्सक्लूडिंग, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यही चीज़ करूँगा इसके साथ, तो बताओ क्या करेगा। अगर मैं यही चीज़ करूँगा एन डॉट सब स्ट्रिंग के साथ, मैं यही चीज़ करूँगा, क्या हो जाएगा बताया कोई मुझे। 0 से स्टार्ट करेगा और एंड तक देगा सर। कहाँ से एंड देगा, माइनस, जब भी माइनस आगे वो जीरो ही कन्वर्ट करेगा इसको 0 0 में। सो 0 0 इज एम्प्टी, इट विल कन्वर्ट इनटू -8 0, -4 0, क्योंकि जब भी इसको नेगेटिव नंबर मिलता है ये इसको 0 बनाता है, जो मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि जब भी नेगेटिव नंबर इसको मिलेगा ये 0 बनाएगा। तो दोनों सूरतों में ये 0 आ जाएंगे, दोनों 0 आ जाएंगे, तो उसका मतलब है कि एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं यही चीज़ करूँगा स्लाइस के साथ, कहूँगा मैं -8 और +4, अब बताओ इसमें क्या आ जाएगा। -8 +4 एम्प्टी आ रहा है, क्यों आ रहा है एम्प्टी। सेम पॉइंट दोनों है। नहीं, कहाँ सेम पॉइंट है, ये तो -8 है, ये 4 है स्लाइस में, क्योंकि -8 मानो यहाँ पर है, 4 तो यहाँ से आएगा ना, 1 2 3 4, माइनस यहाँ से आ रहा है, -1 -2 -3 -4। आप -8 के बाद ही चल सकता है यहाँ से, लेकिन आप इसको बोल रहे हो इधर चलो, तो ये बोलेगा एम्प्टी है भाई, नहीं है, खाली है, खाली है। इट इज़ एज गुड एज जो हमने यहाँ पे किया था, जहाँ हमें एम्प्टी आया था ना स्लाइस में, 16 12, ये देखो 16 12 में भी एम्प्टी आया था ना हमें, क्योंकि 16 जो है 16 आपका 1 2 3 4 16 यहाँ पे है और 12 इधर है। 16 जब स्टार्ट किया आपने इधर से चलने को, है ना, आप इसको पीछे बोल रहे हो, तो ये एम्प्टी दे रहा है। तो वही किस्सा -8 और 4 के साथ है। -8 यहाँ पर है, जब यहाँ से हम आए तो -8 यहाँ से है, और +4 तो इधर है। तो आप -8 से शुरू कर रहे हो तो इधर को चलने का है ना, आप इधर जब बता रहे हो तो ये क्या देगा, एम्प्टी। लेकिन अगर आप यही चीज़ करोगे किसके साथ, अगर आप यही चीज़ करोगे सब स्ट्रिंग के साथ, -8 और +4, क्या हो जाएगा, 0 to 4। 0 to 4, बिकॉज कन्वर्ट्स -8 to 0, तो ये 0 यहाँ से शुरू करेगा, 0 से J 0 1 2 3 4, क्योंकि आपका सब स्ट्रिंग जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है, ये ऑप्टिमाइजेशन आपको दिखाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हमें इसका उल्टा करेंगे, हम कहेंगे इसको +8 to -4, पहले मुझे ज़बानी बताओ, मैं ये दिखा रहा है ना आउटपुट यहाँ पे, 8 और फिर -4 कह रहा हूँ मैं। 0 ये कुछ नहीं दिखाएगा। हाँ? नहीं, सब स्ट्रिंग जो आपका ना ऑप्टिमाइज्ड है, रिवर्स कहाँ से आएगी? रिवर्स नहीं 0 कर to सकते। 8, 0 to 8। देखो आपका जो ये है ना कमांड ए, आपने कहा इसको कि भाई 8 से आप -4 पे चलो, तो ये तो गलत है, क्योंकि अगर आप इस स्लाइस को करोगे तो वो बोलेगा दिमाग ख़राब है, ठीक है ना। क्योंकि अगर इस स्लाइस को करोगे आप 8 और -4 करोगे, तो 8 तो यहाँ पे आ गया और -4 यहाँ से -1 -2 -4 यहाँ पे है, ठीक। तो आपका -4 इधर है और +8 मानो इधर है, तो हाँ ये इसमें तो चलेगा, ये स्लाइस में तो चलेगा 8 से -4 की तरफ। लेकिन -4 इन केस ऑफ सब स्ट्रिंग क्या होता है, 0। सो इट मीन्स 8 to 0, 0 इधर है, तो पीछे तो चल नहीं सकता। 0 to 8 जाएगा। स्वाप करता है। या वेरी गुड, इट विल स्वैप, यू आर बोथ आर राइट, ये स्वैप करेगा, ये हालांकि कन्वर्ट होगा इनटू 0, इट विल बी लाइक 8 and 0, लेकिन जब भी दिखेगा 8 and 0, भाई ये ऐसे नहीं चल सकता, इसको स्वैप करेगा 0 8 बनाएगा,
इसको ज़ीरो बनाएगा। सो यानी कि ज़ीरो जहाँ जुनैद है, जे जहाँ से शुरू है वहाँ से लेके 8 तक इसको आ जाएगा नंबर, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू सी इट। -4, देखो जुनैद आ गया प्रॉपरली। इसमें ये 6 ही लेटर्स हैं और 2 स्पेसेस यहाँ से थी, इसलिए ये 8 दिखा रहा है। 8 से हो गया ना 0 to 8, सो इट विल कन्वर्ट इट इनटू 0 to 8। समझ में आ गई बात? Yes, sir. Okay, I think that's all for today. It's enough. We will continue with this जो हमारे ये स्ट्रिंग मेथड्स एंड जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, एक तो हमारे स्ट्रिंग मेथड्स हैं और एक हमारे पास एरे मेथड्स हैं, और फिर 2 डिमेंशन एरेज एंड ऑल। विल कंटिन्यू विद दिस। 1-2 दिन हमारे एरेज ही चलेगा, ठीक है ना। एनी क्वेश्चंस? सर जब आपने एरे बनाई ना न्यू कीवर्ड से, हाँ हाँ वहाँ पर empty into 4 आ रहा था ना, वो empty Yes. एक्चुअली में अनडिफाइंड होता है ये प्लेस एब्सोल्युटली, होल्डर। एब्सोल्युटली, यू आर राइट। क्योंकि हमारे पास ऑप्टिमाइजर एरेज हैं, उनको उनका साइज़ भी नहीं होगा कुछ, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना क्या है इसमें, क्योंकि फिक्स्ड एरे नहीं होती हमारे पास सी की तरह। अगर सी की तरह में फिक्स्ड एरेज होती कि मैं गोड़ा बोलूँ, मैंने पहले ही आपको बोला फॉर एग्जांपल कि इंट ए और ऑफ साइज़ 4, तो मुझे पता है कि मुझे 4 देने हैं ऑफ टाइप इंट, यानी कि 4 अगर इंट 4 बाइट्स का लेता है तो हर एक 4 बाइट्स का होगा, ठीक है ना। तो अगर आप एम भी ले रहे हो तो 4 बाइट्स खाली है। यहाँ जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जब तक आप वैल्यू नहीं डालोगे तब तक स्पेस कितनी देनी है पता नहीं है ना। यस और सर। चूंकि अगर आपको एरे में, सी के एरे में आपको एक भी एलिमेंट पता है तो बाकी सारे वही है। यहाँ वो चीज़ नहीं है। एक मेरे पास से स्ट्रिंग हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, एक बूलियन हो सकता है। अब बूलियन देखो, बूलियन तो एक ही बिट लेगा ना, और आपका नंबर लेगा 64 बिट फॉर्मेट में है। आपका स्ट्रिंग लेगा एज पर द कैरेक्टर्स कितने हैं, अगर आपने स्ट्रिंग डाली हुई है, ठीक है। आपका नल दैट इज़ काइंड ऑफ एन एम्प्टी, अनडिफाइंड इज एम्प्टी, सो इट इज़ लाइक ए बॉक्स बट विदाउट एनी मेमोरी एलोकेशंस। एंड देन जो आपका आप कह रहे हो कि 4 एम्प्टी आपकी स्पेसिस है, उसको कहाँ पता हमें कितनी मेमोरी देनी है। सो दे आर नॉट गिवन एनी मेमोरी व्हाट्सोएवर, दैट्स राइटिंग 4 इंट एम्प्टी। लेकिन इसने कहा कि 4 इंट एम्प्टी है, उसके बाद आपके पास क्या है 10, ताकि इंडेक्सिंग आपको मिल जाए। इसकी इंडेक्सिंग मिल गई कि ये 0 है, 1 है, 2 है, फिर इन जो 4 है इनकी इंडेक्स मिल गया 3 4 5 6, ताकि जो आपका 10 पे बंदा आता है उसका इंडेक्स क्या है 10। खाली इंडेक्सिंग के लिए आपको बता रहा है कि यहाँ पे जगह है, जबकि है नहीं, ठीक है। कुछ जगह इसने दी नहीं। और जब आप कल को एलिमेंट डालोगे एयर ऑफ 4 के अंदर, आप डालोगे फॉर एग्जांपल जुनैद, अब जितनी जुनैद स्पेस लेता है उतनी जगह मिल जाएगी आपको, ठीक है। टिपिकली इंटरनली दे आर लाइक लिस्ट्स, ओके, बिकॉज हमारे पास ये फिक्स्ड स्पेस नहीं है। जो आपके पास फिक्स्ड एरे होती थी, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन बोलते थे कि भाई साहब ये एरे है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, ये उसके बाद ये है। ये किस्सा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपको एरे में पता ही नहीं है किसका क्या साइज़ है। और एट द टाइम ऑफ रन टाइम अगर आपने कहा कि 4 ब्लॉक्स हैं, आपने कहा कि ए आर इज इक्वल टू न्यू, फिर आपने कहा एरे और दिया 4 साइज़, आपको क्या पता कि इसमें क्या डालोगे आप। सो यू कैन नॉट गिव द मेमोरी इन द बिगनिंग, राइट, कि भाई 4 बाइट्स की मेमोरी हो गई, फिर आपने डाला इसमें, आपको तो पता ही नहीं क्या है। सो यू जस्ट डोंट गिव इट, यू जस्ट रिजर्व द इंडेक्स 0 1 2 3 4 and so on, and then later on the memory is given. So that means if you can infer from this that कि हमारे पास जो contiguous memory allocation का concept होता है array का, एक होता है continuous, कंटेजियस। एक होता है contiguous, एक होता है contagious। जो आप बोल रहे हो contagious को छूत छात जो कि फैलेगी, जैसे कोविड था जो कि फैलता है, वो क्या contagious। और contiguous, contiguous का मतलब होता है कि शोल्डर टू शोल्डर, यानी कि बाउंड्री मिल रही है। कंटिन्यू हो गया कि एक के बाद दूसरा है, बीच में गैप भी आ सकती है ना, जैसे हम नमाज में कहते हैं कि भाई शोल्डर टू शोल्डर हो, गैप मत डालो, ठीक है। वो हो गया कंटिग्यूस। कंटिग्यूस का मीन जिसमें बाउंड्रीज मिलती हों। सो हम एरे को अक्सर बोलते हैं ना इट्स अ कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन। लेकिन यहाँ पे कुछ सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि ये डायनेमिक है, इसमें कभी भी कुछ डाल सकते हैं हम, और कोई भी डिफरेंट डेटा टाइप डाल सकते हैं, हम कंटिग्यूस रख ही नहीं सकते, तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो पॉसिबल है सी के अंदर, जब हमारे पास पता होती है कि भाई ये 4 बाइट इच्छे 4 इच्छे 4 है ना। सो दैट मीन्स वी कैन
no, wall them together and fixed boxes are given, then you can drop the things into that. यहाँ पे तो सर वैसा जो किसी आपने बोला टाइप्ड एरे, उसमें फिर वो होते हैं कंटीजियस। वो थोड़ी डिफरेंट है, उसमें हम बाइट्स पे काम करते हैं, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है ना, वो थोड़ी डिफरेंट है. यस, वी हैव द टाइप्ड एरेज एंड वी हैव मेनी मोर थिंग्स विच वी कैन डू. लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास सी की तरह कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं है ना, यस क्योंकि सर। क्योंकि स्क्यूज, अगर ये इतना साइज है ना, इसने फॉर एग्जाम्पल पढ़ा था इसमें जुनैद, अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ. आई कैन पुट अप इनटू जुनी. अब जुनी कितने ले रहा है, 4 ही, जुनैद 6 ले रहा था, है ना. सो यस सर। तो ये स्क्यूज भी होगा और ये बढ़ भी सकता है. फॉर एग्जाम्पल अब मुझे जुनैद नहीं, मैंने पूरा मुत्तकी मोहम्मद जुनैद डाल दिया, लंबा सा नाम है, ठीक है, ये तो बढ़ जाएगा ना. सो दैट मीन्स it can skews, the box can skews, it can grow up. So it is actually internally in terms of list, जो आपकी linked list होते हैं ना, it is kind of that. Internal implementation is using the list. ठीक हो गया. I'm getting tired. That's all for today. See you guys inshallah tomorrow. फिलहाल classes continue रहेंगे. Okay. Okay. Allah Hafiz.